Welcome to the class. Topic name Mechanical Properties of Fluids. IIT problem 2005. Please read the question. Water is filled in a cylindrical container to a Some height. water is filled in this cylindrical container. The height of this cylindrical container is given 3 meter. Yes. The ratio of the cross-sectional area of the orifice and the beaker is 0.1. Cross section area of this orifice is 0. yes. Cross-sectional area of the orifice and the beaker is 0.1. Beaker is 0.1. चलिए आगे. Find the speed of the liquid coming out from the orifice. Find the speed of the liquid. speed of the liquid coming out from this orifice. So your aim is to calculate the velocity of the liquid coming out from this orifice. Orifice means a small opening in the beaker. So for this, first we need to apply the equation of continuity and then we use the Bernoulli's theorem. So this is the application part of your Bernoulli's theorem. So for that, I assumed it let A1 and A2 are the cross section area of cylinder and this orifice respectively, and the velocity is V1 and V2. V1 for this cylindrical surface and this for orifice, I assume it velocity is V2. So according to equation of continuity, A1 V1 is equal to A2 V2. Our aim is to calculate the velocity of this orifice. So I assume it say it is V2. So this velocity V2 we have to calculate it. So V2 is this implies what is the value of V2 is then A1 upon A2 into V1. So this is your equation number 1. Okay? Beta, what is the Bernoulli's theorem? Please read the Bernoulli's theorem. Bernoulli's principle states that the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume. According to Bernoulli's principle, the sum of the pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume is constant. If fluid is incompressible, other physical condition keep it constant. So we apply that Bernoulli's theorem here. So Bernoulli's theorem we apply pressure energy, kinetic energy, potential energy per unit volume at this point and at this end. These are equal. So what is the pressure energy? We denoted by P1. भूल जाते हो. P1 is the pressure energy. What is potential energy per unit volume? P1 is the pressure energy per unit volume of this beaker. Okay. So rho G H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम. तो m upon v is density rho. So this is half rho v1 square. And density of the fluid is same, तो rho ही रहेगा. g acceleration due to gravity is again same, इसलिए g रहेगा, इसलिए 1 नहीं आएगा. Okay, is equal to then at this end again apply the Bernoulli's principle. So we get P2 plus बोलो rho G, speak loudly, H2 plus half rho V2 square. Now, since the pressure is at beaker at this end and at this end, both are at the atmospheric pressure. So in this situation, P1 is equal to P2. क्या लिख देंगे हम इसको? Atmospheric pressure. So therefore, here we put it P1 equal to P2. So when substitute P1 equal to P2, so these two are cancel out each other. So finally what you get then? So this implies हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा? Rho GH बोलो rho GH1. Read it ना, speak it. Rho GH1 plus half rho V1 स्क्वायर. आपको P1 P2 हटाना है, बस कैंसिल आउट इज इक्वल टू रो GH2. लर्न हो जाएगा, साथ के साथ बोलोगे तो रो V2 स्क्वायर. अब देखिए रो कॉमन थ्रू आउट एंड फिर कैंसिल आउट ईच अदर. तो रो हट जाएगा, रो हटा देंगे और हमें चाहिए किसकी वैल्यू? V2 की वैल्यू चाहिए या V1 की वैल्यू चाहिए?
V2 की चाहिए, तो हमें यहां से V1 निकालना चाहिए था। तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इंप्लाइज V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 अपॉन A1 इंटू ये वाली वैल्यू, मतलब V1 की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो V2 आ जाएगा। तो V1 इज A2 अपॉन A1 है इंटू V2। तो ये V1 की वैल्यू मैं यहां से यहां पुट कर दूंगा, तो सब्स्टिट्यूट कर दें। तो यूजिंग इक्वेशन 1a कह लो इसको होगा, यूजिंग इक्वेशन 1a इन दिस इक्वेशन एंड रो थ्रू आउट कैंसिल कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको आंसर? इफ यू कैंसिल आउट इट तो क्या मिल गया? दिस इज इक्वल टू वी कैन से रो तो कैंसिल GH1 ये भी इधर ले जाऊंगा माइनस GH2 इज इक्वल टू हाफ कॉमन एंड रो तो कैंसिल हो चुका था, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर है, लेकिन आप किसको इधर ले जा रहे हैं? इधर ले जा रहे हैं, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू है। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, तो हाफ आपके पास क्या आ जाएगा? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, V1 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये G कॉमन, ये बन गया H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस व्हाट इज V1 स्क्वायर? A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। अब यहां से हमारा V2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो V2 स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, इस 2 को मैं इधर ले जाता हूं, तो 2G H1 माइनस H2 इंटू, अब V2 स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन गया? 1, तो 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। अब A1 स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? V2 स्क्वायर इज A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2 स्क्वायर? तो दिस इंप्लाइज V2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 2G H1 माइनस H2 होल अपॉन दिस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर, किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास? और इसको A2 अपॉन A1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें डेटा गिवन है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2G आ गया आपके पास, H1 माइनस H2 आ गया, 1 माइनस ये आ गया, तो ये V2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मुझे आप डेटा बताइए, तो आपको क्या है एक्चुअल में? डेटा गिवन है रेशियो में, इसलिए हमें वहां से वो आ जाएगा। तो डेटा क्या गिवन है? क्वेश्चन में देखिए वापस, क्वेश्चन में आपको गिवन है वाटर इज फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल हाइट 3 मीटर तक है एंड ये क्या है? रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ओरिफी एंड द बीकर, दोनों का रेशियो दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का। तो अब यहां हम इसको मैं रब कर रहा हूं, डेटा लिखिए आप, गिवन क्या क्या है। तो गिवन डेटा जो हमारे पास है वो है A1 अपॉन A2 की वैल्यू दे रखी है। A1 हमने किसका एरिया माना था? A1 हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सिलेंडर का है, तो A1 अपॉन A2 इज आपको जो गिवन है वो 0.1 है। अब इसे यूनिट क्यों नहीं आई? क्योंकि ये रेशियो है दो क्वांटिटी का, ये क्या है? दो क्वांटिटी का रेशियो है। देखते हैं वापस, तो बड़े में छोटे का डिवाइड है, द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ओरिफी एंड द बीकर दिया, उल्टा दिया भाई, पहले ओरिफी दिया है फिर आपके बीकर दिया हुआ है। तो ओरिफी को आपने ए माना था, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू आपकी 0.01 और यू कैन से A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 0.1, क्योंकि रेशियो ऑफ द टू एरियाज है तो इट इज ए डायमेंशनलेस। आपको ओरिफी टू ब्रेक बीकर दे रखा है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये A2 अपॉन A1 की वैल्यू आ गई, तो दिस इंप्लाइज, या तो आप यहां से वापस A1 स्क्वायर नीचे रख लें तो भी हो सकता है, इसको इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, तो यहां मैं लिखता हूं वैल्यूज। और क्या डेटा गिवन है भाई हमें? G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, वैल्यू ऑफ G इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो G ये ले लोगे और आपको हाइट दे रखी है H1 और H2 भी आपको दे रखा है 50, लेकिन वो सेंटीमीटर में है, उसको आप मीटर में बदल दीजिए। तो ये H1 आपको दिया हुआ है
3 मीटर, H2 आपको दे रखा है 52.5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलोगे तो 0.525 मीटर अपॉन 100 करेंगे। तो अब मैं ये फॉर्मूला ले रहा हूं वापस, तो इसको से मैं लिख रहा हूं V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH1 माइनस H2 अपॉन ये A1 स्क्वायर वापस नीचे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें A2 अपॉन A1 की वैल्यू दी है, तो ये यू हो जाएगा 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10, वैल्यू ऑफ G पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ H कितना है? 3. H1 आपका है 3 माइनस 0.525 अपॉन 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर है। क्या है उसका? होल स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 3 में से जब 0.525 घटाओगे तो आपका बन जाएगा 2 कितना बचेगा बताओ? 2.475। देखिए 0.000 लिख देंगे, 10 में से 5 के 5 और 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका 20। तो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 2.475 और 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01, फिर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा 1.00.01, तो क्या आ जाएगा 09, 10 में से 1 9 और ये 9, तो 0.99 कितना आ जाएगा 0.99, तो 0.99 यहां लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये डेसिमल से डेसिमल हटा दो, ये 0 आ जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। व्हेन यू डिवाइड इट व्हाट यू विल गेट, इसको देखें, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो 2475 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यू गेट 2 5 जा 10, 1 2 7 14 15, 2 4 जा 8 8 9 और 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 99। तो ये कितनी बार चला जाएगा, आपको डिवाइड करोगे तो ये 5 बार जा रहा है। देखो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 ये 49, ये हो गया डिवाइड बाय 495 आ गया 5, और फिर ये 0 है, 0 आपने यहां से ली तो ये आ गया 50, 0 कैरी हुई 050। तो इसको जब आप डिवाइड सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली यू गेट 4950 अपॉन 99, दिस इज इक्वल टू 50। So this is the value of V2 square. So this implies V2 is equal to under root of 50 and root 50 की वैल्यू जो होती है वो होगी 7.07, 7 7 जा 49, आप कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको मीटर पर सेकेंड। तो द वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दिस, तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई V2 ऑफ ऑरिफिस इज दिस। थैंक यू वेरी मच।